Perspective. Basketball action getting underway. There's the Maharashtra team getting ready to take the court, and they are facing up to Rajasthan. Maharashtra Chief Coach Rajesh Kshetriya. Final instructions, and there's Rajasthan for you. Tall girls from Rajasthan. Legend, of course, Nathu Singh, who played in the Asian All-Star 11. First Indian to do so. Some of the Rajasthan players on court without jersey numbers, so that will be slightly difficult for us as well as the technical table to track. I'm sure Sunil will be able to find some way out. I'll just shout from here, Ravi. Beta, apna naam batana, please. But I like number 11, Shomira. जिस तरह के उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, एक स्टाइल स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं. हमने शुरुआत की थी 7 खिलाड़ियों के खेल कबड्डी से. उसके बाद हम आए 6 खिलाड़ियों के खेल वॉलीबॉल में. अब हम आए हैं 5 खिलाड़ियों के खेल यानी बास्केटबॉल में. खिलाड़ियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन एक्शन बढ़ता जाएगा. 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर हैं. आप 3 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, 2 पॉइंटर दाग सकते हैं और सिंगल पॉइंट वाला फ्री थ्रो ले सकते हैं. सबकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम आपको बताएंगे. टिप ऑफ के लिए दोनों टीम्स तैयार. 3 referees on court, keeping an eye on the action, and the technical table giving the thumbs up. Well, there seems to be some confusion with yes, the same problem that we were facing. 2 players without shirt numbers, so obviously the technical table wouldn't know who to credit the points to and who to give the fouls to. भाई असिस्ट किसने किया, ब्लॉक किसने किया, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रिबाउंड किसने लिए, टर्नओवर किसने कमिट किया. बास्केटबॉल इन आंकड़ों का खेल है. इनके बिना बास्केटबॉल चल नहीं सकता. और अगर टेक्निकल टेबल को प्लेयर्स का जर्सी नंबर नाम नहीं पता, वेल हाइट का एडवांटेज सीधा राजस्थान के पास था. पहला बैंक शॉट राजस्थान का, उनके बैंक में पहले 2 पॉइंट. Well, Rajasthan get us underway with a quick layup right under the rim. Now it's Maharashtra's turn. Driving in is Asmi Bora. Can't get it off. Tried a reverse layup. Picking the ball up is point guard Manvi Srivastav. Shot clock set at 24 seconds, which means that the ball must leave the hand within that 24-second time. First whistle of the match and a foul. So free throws. Sunil Taneja, your favorite. Oh, absolutely. फ्री थ्रोज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. अगर आपने 2 पॉइंटर शॉट का अटेम्प्ट किया और आपको शूटिंग में फाउल किया गया तो 2 फ्री थ्रोज. अगर आपने 3 पॉइंटर का अटेम्प्ट किया तब फाउल किया गया तो 3 फ्री थ्रोज मिलेंगे. और अगर आपका शॉट बास्केट हो गया, चाहे 2 पॉइंटर का था या 3 पॉइंटर का था, तब फाउल किया गया और शॉट बास्केट हो गया तो 1 ही फ्री थ्रो मिलेगा. यहाँ 50% फ्री थ्रो रिकॉर्ड है. शोमिरा का 1 मिस किया, 1 हिट किया. 50% इज नॉट अ गुड परसेंटेज. कम से कम 70-80% अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी शुरुआत है, बड़ा छोटा सैंपल साइज है. We're still in the first minute of action. Remember, the clock stops each time the ball goes out of play. So 1 foul in the name of Rajasthan. Again, the whistle has gone, so Maharashtra didn't want to be left behind in that category, so they picked up their first foul as well. 18 फीट दूर फ्री थ्रो लाइन है. 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे क्योंकि 2 पॉइंट शूटिंग के दौरान इनको फाउल किया गया था. अब पर्सनल फाउल किए गए हैं ये. अगर कोई प्लेयर 4 पर्सनल फाउल करती है पूरी गेम में तो ठीक है. किसी भी प्लेयर ने अगर 5 पर्सनल फाउल कर दिए तो उनको गेम छोड़ के जाना पड़ेगा. उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, लेकिन वो प्लेयर आगे नहीं खेल पाएगा. तो ये पर्सनल फाउल्स का भी अकाउंट टेक्निकल टेबल रखती है. यहाँ दोनों फ्री थ्रोज नॉकडाउन किए. लीड में राजस्थान.
लेकिन अभी भी रवि फील्ड गोल होने बाकी हैं, सारे पॉइंट फ्री थ्रो से आए हैं। A slightly slow start, quite expected, and this is the first field goal right on demand for Sunil Taneja. मेलोडी मेनेजिस ने ये कमाल की मेलोडी हमें दिखाई, राइट में मौजूद थी, बैंक शॉट लगाया और 2 पॉइंट का बैंक डिपॉजिट करवाया। Being forced out by the... Oh, good shot taken there. Manvi Srivastav, right on the money. Went from a foot behind the... There you see foot behind the free throw line, but aimed it perfectly. A little bit of rattle. इस बार राइट साइड से शॉट था, बिल्कुल 3 पॉइंट लाइन के अंदर से। ये जो अब सेमी सर्कुलर आर्क अभी आपने देखा, हम दोबारा दिखाएंगे, एक बड़ा सारा सेमी सर्कल दोनों रिम के नीचे बना होता है, उसके बाहर से शॉट लगाया, बास्केट हुआ तो 3 पॉइंट, उसके अंदर से अगर शॉट लगाया, ये देखिए सेमी सर्कल बना हुआ है, इसके बाहर से अगर आपने स्कोर किया 3 पॉइंट, उसके अंदर से कहीं से भी जितना चाहे अंदर से स्कोर करें 2 पॉइंट मिलते हैं आपको। So far, Maharashtra are dominating the boards, picking up those rebounds and getting the offensive rebound as well. This time tried to drive and an offensive foul there. Not good for Maharashtra. क्योंकि ऑफेंसिव फाउल ये नंबर 8 के खिलाफ गया है, सिया दियोधर डिफेंडर के बीच में टकरा गई, इनका पहला पर्सनल फाउल है। फिर बता दूं 4 पर्सनल फाउल आप कर सकती हैं, 5वें पर्सनल फाउल से गेम छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मिड रेंजर की कोशिश की थी राजस्थान की सोनल महाला ने, कामयाबी नहीं मिली। और एक टीम के कुल मिलाकर एक क्वार्टर के अंदर अगर 4 पर्सनल फाउल हो गए तो विरोधी टीम का किया गया हर एक फाउल आपको फ्री थ्रोज दिलवाएगा। तो टोटल 4 पर्सनल फाउल एक क्वार्टर में नहीं होने चाहिए। ले अप किया और यहां फाउल ड्रॉ करने में कामयाब हुआ महाराष्ट्र। अभी शुरुआती ही दौर में काफी सारे फाउल, काफी सारे फ्री थ्रोज देखने को मिले हैं। Well, not a very clean start. So 2 free throws. It's Manvi Srivastav on the free throw line. Surprisingly, they've allowed her to wear a shirt number 3. Her original number is 13. We've had a lot of trouble with the numbers. Remember, in the game of basketball, the player numbers start from 4. 1, 2 and 3 are not allowed on court. We have seen 0, we have seen 00 in NBA. 1, 2 and 3 are not allowed because that's the signal from the umpires when they show that's the free throw. Rattle off the board, but in. So 7-3 the lead for Rajasthan. This time Maharashtra managed to convert. And the reason why 1, 2 and 3 are not allowed shirt numbers. Talking about those jersey numbers, my favorite number 00 Enes Kanter, जो NBA में खेलते हैं, बैंक शॉट लगाने की ट्राई, ट्रेवल कॉल किया गया रेफरी की तरफ से। बॉल लेकर आप मूव नहीं कर सकते, यू हैव टू ड्रिबल द बॉल। हाथ में बॉल आया है या तो ड्रिबल करते रहिए, वो भी एक हाथ से, दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पास कीजिए, बॉल लेके आप चल नहीं सकते। ये बुनियादी और पहला रूल है बास्केटबॉल का। You can hold the ball with both hands only twice. Once one receiving, and this time right slightly away, pushed away from the line, but Asmi Vora making no mistake with that opportunity, didn't have any defense keeping an eye on her. Lead now down to 2. और हमने दोनों रिम्स के पीछे अपने कैमरास लगाए हैं, आपने रिप्ले बड़ा खूबसूरत उसी एंगल से देखा है। मानवी फिलहाल अपने साथी को ढूंढने में कामयाब, लेअप किया है और फाउल ड्रॉ करने में वो कामयाब रही हैं। तो फाउल्स पर नजरें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर एक टीम ने एक क्वार्टर में सम्मिलित तौर पर 4 पर्सनल फाउल कर दिए, फिर अगला हर फाउल आपकी ओपोनेंट टीम को 2 फ्री थ्रोज देगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। Remember, this is the girls under 17 Pool B League match. The pool also includes Haryana and Tamil Nadu. So definitely it is not going to be anything easy. Top 2 go into the semi-finals, and then of course the final. Pool A has also got an interesting lineup in the under 17 women's category. Assam, Delhi, and it is beg your pardon, it's Karnataka and Kerala.
Good reply from Rajasthan. Shot clock reset at 24. There you see the drive and off the boards, getting another 2 points. So Rajasthan at the moment making a strike. Good steal there. This could be a breakaway. Going through and no problem whatsoever for Jia. To number 12 for Rajasthan, Sonal Mahala. Easy layup. ये इनके पॉइंट भी काउंट होंगे, तो इनके नाम स्टील भी काउंट होगा। जब आप अपने विरोधी से बॉल को छीन लेते हैं उसे लिटरली स्टील कहा जाता है। पॉइंट, रिबाउंड, असिस्ट, स्टील, ब्लॉक, ये 5 कैटेगरीज हैं। किन्हीं भी आप 2 कैटेगरीज में अगर डबल डिजिट में पहुंच जाते हैं उसे डबल डबल कहा जाएगा। अगर आप 3 कैटेगरीज में डबल डिजिट में पहुंचते हैं उसे ट्रिपल डबल कहा जाएगा, जो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई लेजेंड्स ट्रिपल डबल करने के लिए मशहूर हैं। टाइम आउट कॉल किया गया है। And at the time of timeout, just give you a quick update that Maharashtra have gone into an early foul trouble. Still 5 minutes 37 seconds remaining on the game clock, and Maharashtra have already got 4 team fouls against their name. So now every foul, wherever in the court, whether it's under the offensive board or the defensive board, every foul by Maharashtra will earn 2 free throws for Rajasthan. So that is not great news for Maharashtra. They've got to be very, very careful. अभी ऑलरेडी वो 8 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं। राजस्थान ने पहले ही धमाकेदार शुरुआत की है, और जो हम 3 पॉइंटर की कोशिश है। क्या बात है, पहला 3 पॉइंटर इस गेम का, तकरीबन 23 फीट दूर से बिल्कुल 3 पॉइंट लाइन से मेलोडी ने स्कोर किया है। Melody Managers had an early layup as well from a very difficult angle. So 3-pointers when they start getting the range. Then this time a steal by Maharashtra. Shomira going in. Nearly lost the ball there. Very close. 3-pointer once again. No. Defensive board taken. अच्छा डिफेंसिव रिबाउंड लिया था राजस्थान ने। अच्छा तालमेल है, बैंक शॉट लगाया है, लेकिन फिर से ऑफेंसिव रिबाउंड। दूसरी कोशिश बिल्कुल कामयाब इस बार हर्ष नंदिनी ने। अच्छा तालमेल राजस्थान के फॉरवर्ड्स के बीच। There you see the ball hitting the rim and then going in. Maharashtra defense playing a little open because they are in foul trouble this time again. From mid-range, getting that shot in. मेलोडी बहुत ही खूबसूरत शॉट, 3 पॉइंट आर्क के थोड़ा सा अंदर से लगाया। ये देखिए सेमी सर्कल बड़ा सारा, ये 3 पॉइंट आर्क है। इसके अंदर से चाहे जितना चाहे अंदर जाए बाहर जाए, 2 ही पॉइंट आपको मिलते हैं। लो पोस्ट में प्लेयर मौजूद हैं। हर्षनंदिनी टीम की सबसे लंबी प्लेयर, अक्सर आपको बास्केट के नीचे यानी लो पोस्ट में नजर आएंगी। उन्हें सेंटर प्लेयर कहा जाता है और उनका यही काम है। ऑफेंसिव रिबाउंड लीजिए और आराम से 2 पॉइंटर स्कोर कीजिए। Harshnandini Chauhan made a great putback there, picking up the rebound and trying to go cross court, steal there. What's Madhavi Srivastava trying to get a layup? Got a foul, so we'll go to the free throw line because Maharashtra is in foul trouble. भाई अब चाहे शूटिंग फाउल हो चाहे नॉन शूटिंग फाउल हो, ये तो नॉन शूटिंग फाउल था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी 4 पर्सनल फाउल कमिट कर चुका है, चाहे शूटिंग फाउल है चाहे नॉन शूटिंग फाउल है, ऑफेंसिव फाउल है, हर फाउल पे राजस्थान को 2 फ्री थ्रोज मिलने वाले हैं। This is free throw gets you 1 point, and remember this has been ruled as a shooting foul. Misses the first one, and she did not get 1 for 1, which is what the foul would have got you. No, missing both of them. Not great for Rajasthan. We've seen some great players struggling from the free throw line, and the biggest name among them, of course, Shaquille O'Neal. The legendary Shaq। ऐसे दिग्गज प्लेयर आज भी एनबीए में हैं जो 3 पॉइंट लगा देंगे, 25-26 फीट दूर से लगा देंगे। अच्छा लेअप किया इस बार, बहुत सुंदर लेअप देखा राजस्थान की नंबर 12 सोनल महाला का। देखिए बॉल मिलती है, बड़ी खूबसूरती से डॉज दिया, लेअप हल्का सा फ्लोटर किया और ग्लास के सहारे 2 पॉइंट लेने में कामयाब। तो कई दिग्गज प्लेयर हैं जो 26, 28, 30 फीट दूर से 3 पॉइंटर लगाते हैं। जब उनके सामने 10-10, 8-8, 9-9 प्लेयर हैं, लेकिन जब 1 वर्सेस 1 की बारी आती है, बिना किसी ओपोनेंट के सिर्फ फ्री थ्रो स्कोर करना है, तो नाकामयाब हो जाते हैं। उन्हें मुश्किल काम ज्यादा पसंद है। शोमिरा
डिफेंसिव रिबाउंड लेने में कामयाब सोनल महाला। काउंटर की तैयारियां, फास्ट ब्रेक पर राजस्थान है। अच्छा पास मिला है हर्षनंदिनी को। डिफेंसिव रिबाउंड, लेकिन दोबारा से हर्षनंदिनी वहां मौजूद है। बहुत हाई, तो एयर बॉल हो गई रवि। Certainly Maharashtra defense keeping Rajasthan at bay, and Rajasthan players not able to get their shots on target. Maharashtra trying to fight back, still the lead 9 for Rajasthan. Remember, we are only in the first quarter. This could be trouble times, and it's a common ball. So the players will have to 2 thumbs up. So ball will be put back in play by Maharashtra, who will keep possession. Outside the 3-point line. Will they go for one from downtown? No. Get inside. From just inside the free throw area, but nobody going for the offensive rebound, so it was an easy pickup out. Nearly gave that ball away. And a traveling foul against Rajasthan. So losing possession once again. भैया आप राजस्थान से ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, लेकिन बॉल को लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते। बॉल आपके हाथ में है, उसे ड्रिबल कीजिए। जैसे ये देखिए, महाराष्ट्र की प्लेयर कर रही हैं। एक साथ 2 हाथ आप लगा नहीं सकते। इस समय नंबर 11 यानी शोमिरा के पास बॉल है, साथ ही मौजूद फ्लोटर दागा मिड रेंज से मेलोडी ने 2 पॉइंट। Very smart work there. Saw the defense following the center player under the rim and immediately turned around and took the shot off, pulled the trigger. Moving the ball about. Shammanvi Shrivastava off the rim. Second opportunity for Rajasthan from the free throw line. Again, third opportunity. And this time picks up a foul. 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। स्कोर के ऊपर टाइम देखिए 14 सेकेंड। जब भी किसी टीम के पास बॉल आती है तो 24 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको बॉल शूट करने के लिए। अगर आपने शूट किया और रिम से लग के बॉल आप ही के साथी के पास वापस आई तो शॉट रीसेट हो जाती है 14 पर। फिलहाल ये फाउल किया गया है। 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। फ्री थ्रोज तकरीबन वैसा है जैसे हॉकी या फुटबॉल में आपको फ्री किक या पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, लेकिन वहां सामने गोलकीपर होता है, यहाँ कोई खिलाड़ी नहीं। सामने रिम है, स्कोर कीजिए। हर स्कोर का 1-1 पॉइंट मिलेगा, मिल गया है। Both free throws converted. There you see from behind the boards, water side. Perfect. This is called the swoosh. The sound into the netting. Approaching the final minute, Maharashtra still down by 8. Trying to move the ball about. Shimora lost the ball. Looked up and in that very second had the ball taken away. Now Manavi for Rajasthan gets the shot off from far outside rim. Maharashtra pick up the defensive rebound. Final minute in progress of the first quarter. Remember, 4 quarters of 10 minutes each. Under 17 girls action at the Khelo India Games, Youth Games 2020. Shimora outside once again. This is Tia Theodar. टीम की पॉइंट गार्ड है सिया, और ये डाउनटाउन से लगाने की कोशिश की थी, यानी 3 पॉइंटर लगाने की कोशिश की थी। पूरे गेम में अब तक एक ही 3 पॉइंटर हमने देखा है। महाराष्ट्र की मेलेडी मेनेजिस ने वो 3 पॉइंटर स्कोर किया था। राजस्थान की तरफ से 3 पॉइंटर तो कोई आया नहीं। इनफैक्ट 2 पॉइंटर और फ्री थ्रोज तकरीबन बराबर स्कोर होगा। आखिरी आधा मिनट रवि पहले क्वार्टर का। Just 8 seconds the difference between the shot clock and the game clock, and a open opportunity, absolutely open opportunity, finishing off in style. There you see open basket, no defense anywhere under the rim, easy conversion. Shot clock will be taken off because when and there's the buzzer going from the technical table, signaling the end of the first quarter, and Maharashtra's got plenty of work to do. Remember, a 2-minute break between the quarters. 23-12. The score in favor of Rajasthan is basketball under 17 girls. ग्रुप बी मुकाबला महाराष्ट्र और राजस्थान का चल रहा है। पहले क्वार्टर का खेल खत्म हो चुका है और ये टीम महाराष्ट्र से पीछे चल रही है। राजस्थान के पास 23-12 की लीड है। बड़ी
बड़ी जल्दी ही महाराष्ट्र ने अपने एक क्वार्टर के जो कोटा होता है 4 पर्सनल फाउल्स का वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हर एक फाउल ने राजस्थान को फ्री थ्रोज दिए। कोई भी 3 पॉइंटर स्कोर नहीं किया गया राजस्थान की तरफ से। ज्यादा शॉट उनके 2 पॉइंटर रहे और चूंकि महाराष्ट्र की तरफ से पर्सनल फाउल काफी हो रहे थे तो फ्री थ्रोज भी भर के मिले हैं राजस्थान को। तो थोड़ा सा व्यवस्थित, इनफैक्ट काफी व्यवस्थित करना है महाराष्ट्र को अपने खेल को। रवि, Well, Tanvi Salve, the captain, wearing shirt number 8, talking to our players, definitely expecting some better response in the second quarter. Remember, 4 quarters of 10 minutes each. That's the contest in amateur basketball, and it will be Rajasthan who will have possession, so they will put the ball back into play from just behind the center line, and Rajasthan in blue, Maharashtra in dark blue and red. Air ball taken by Maharashtra. We call it an air ball when the ball shot is attempted but the ball doesn't touch anything, either the board or the rim. सिया के पास बॉल है जो टीम की पॉइंट गार्ड है। जहां डाउनटाउन से कोशिश नाकामयाब, डिफेंसिव रिबाउंड लिया गया है राजस्थान की तरफ से। काउंटर की तैयारियां शुरू। सोनल महला, अच्छी पासिंग लेफ्ट विंग से, दोबारा से सोनल आई है। 4-5 डिफेंडर में वो घिर गई। फाउल ड्रॉ करने में कामयाब सोनल महला। Early days and 2 free throws. That foul goes against Maharashtra number 10. Pushing foul given, pushing the player. Actually, body contact is not allowed, but referees have to be very, very selective. Missing the first throw from the line. ये पर्सनल फाउल काउंट होगा महाराष्ट्र नंबर 10 भूमिका के खिलाफ। दूसरा फाउल है फ्लेग्रेंट, वो भी पर्सनल फाउल ही होता है, लेकिन अगर आप अपने विरोधी खिलाड़ी को अननेसेसरी कुछ कांटेक्ट करते हैं उसे फ्लेग्रेंट 1 कहा जाता है। अगर आपका कांटेक्ट अननेसेसरी और एक्सेसिव है, यानी किसी को धक्का दे दिया, चाटा मार दिया, वो फ्लेग्रेंट 2 फाउल है और फ्लेग्रेंट 2 फाउल करने वाला प्लेयर गेम से बाहर कर दिया जाएगा और विरोधी टीम को 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। फिर आता है टेक्निकल फाउल। इफ यू डिसरिस्पेक्ट द स्पोर्ट और ओपोनेंट और रेफरी, फिर टेक्निकल फाउल मिलता है। जहां लेअप मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे बैंक शॉट के साथ। That was the second fast break of the match by Rajasthan. There you see, just getting away, an easy layup there for Rajasthan. So score now 25-12. 10 minutes per quarter. You can score 1, 2 or 3 points. This time just a turnover from Rajasthan. Wrong pass. Maharashtra can gain possession. Maharashtra yet to score. We are almost 90 seconds gone in the second quarter, yet to get their first points. Rajasthan defense playing pretty open, challenging them, but this time just stepping inside the 3-point line and picking up 2 points. That is Sia Devdar. टीम की पॉइंट गार्ड है। अक्सर टीम की सबसे छोटी हाइट की प्लेयर पॉइंट गार्ड होगी। आप लेजेंडरी लेब्रॉन जेम्स को, स्टेफ करी को देख लीजिए, सबसे छोटी हाइट है। हालांकि वहां छोटी हाइट 6 फीट 3 इंच मानी जाती है, वो पॉइंट गार्ड होते हैं। ये इस बार फ्री थ्रो लाइन से कोशिश की है। तो पॉइंट गार्ड वो प्लेयर है जो अपनी टीम का प्ले मेकर है, जैसे सेंट्रल मिडफील्डर हॉकी में या क्रिएटिव मिडफील्डर आप फुटबॉल में देखते हैं, जो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद स्कोर भी करता है। स्टेफ करी खुद बड़े प्रोलिफिक स्कोरर हैं। ये पॉइंट गार्ड है टीम की नंबर 8। ये देखिए, उन्होंने ढूंढना है अपने कौन से साथी को जो अनमार्क्ड है। 3-पॉइंट लाइन के बाहर से कोशिश, ऑफेंसिव रिबाउंड महाराष्ट्र को मिला है। तो शॉट क्लॉक दोबारा से 14 सेकंड पे रीसेट कर दी जाती है अगर आप ऑफेंसिव रिबाउंड लें, यानी कि एक ही टीम के प्लेयर द्वारा दागा गया बॉल उसी के टीममेट को रिम से लग के वापस मिले। बॉल इनबाउंड महाराष्ट्र की टीम करेगी। लो पोस्ट में प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन डिफेंसिव रिबाउंड ऑफ कोर्स विरोधी टीम लेती है। अच्छा डिफेंस महाराष्ट्र का, अच्छा फॉल बैक महाराष्ट्र के प्लेयर्स का अपने रिम की तरफ। सिया साथियों की तलाश में है, मिड रेंजर लगाने की कोशिश, मिड रेंजर भी चूक रही है महाराष्ट्र के प्लेयर्स। और इस बार बॉल गवाई है, बॉल इनबाउंड की जाएगी राजस्थान की तरफ से। नंबर 12 सोनल महला।
दिस इज नंबर 3 मानवी श्रीवास्तव। ये तो 0-3 होना चाहिए या 1-3 होना चाहिए, जैसा रवि ने बताया, क्योंकि 1-2-3 के सिग्नल होते हैं। 1 फ्री थ्रो, 2 फ्री थ्रो, 3 फ्री थ्रो और 3 सेकंड वायलेशन भी होती है, 5 सेकंड वायलेशन भी है, 8 सेकंड भी है। हम उन पर आएंगे, फिलहाल रिप्ले देखिए। Turn around jumper attempted, but immediately the hand was hacked. So Maharashtra pick up their second foul of the quarter. No problems with the free throw. Rajasthan increasing the lead 28-14. Maharashtra have got to pick up their game and pick it up well. That's the point guard, the person who controls the flow. Had an opportunity at the top. Bounce pass, getting it horizontal. Oh, sideboard, out of play. So Maharashtra will put the ball back in. I beg your pardon, it's given to Rajasthan. आखिरी टच महाराष्ट्र के प्लेयर का हुआ है, बॉल बाहर जाने से पहले, ठीक हॉकी फुटबॉल की तरह। तो दूसरी टीम के खिलाड़ी बॉल को इनबाउंड करेंगे। जब आपको अपने हाफ में बॉल मिले तो 8 सेकंड में आपने बॉल को लेके सेंटर लाइन को क्रॉस करना ही करना है। अगर नहीं किया तो उसको 8 सेकंड वायलेशन कहा जाता है। बॉल राजस्थान के पास है, फ्लोटर दागने की कोशिश, लेकिन बड़ा ढीला सा फ्लोटर था। बॉल मिली है महाराष्ट्र को, 8 सेकंड से पहले उन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस कर ली है। ये फाउल अक्सर कम देखने को मिलता है। नंबर 3 मेलोडी साथी मौजूद है उनकी, अस्मी वोरा, मिड रेंज जंपर, प्राइज मिला बम्पर। बिल्कुल सही। Had the opportunity there, you see, coming in, beating the defense and then getting the shot off. Rajasthan still enjoying a 30-point advantage, 29-16. 5 minutes 42 seconds on the game clock. Rajasthan again on the free throw line, third team foul. So looks like within the first 5 minutes, Maharashtra will yet again get into foul trouble. Fifth foul onwards, the team is conceding 2 free throws on every foul, and that's something which is not good for the team. This time a steal by Rajasthan, taking it under their own rim, going for a fast break. Running down is Diksha Parikh, but no problem there. Gets some help and picks up another 2. First shot didn't go in, but the offensive rebound was picked up by Rajasthan. They've been dominating both boards, and this kind of attempt won't help. Another fast break coming. Manvi Srivastav on target. ब्यूटीफुल लेअप फ्रॉम मानवी। एकदम कोई 1-on-1 का मामला था और बिल्कुल बाहर जाने से पहले उन्होंने ये फ्लोटर लगाया। राइट विंग से कोशिश है, डिफेंसिव रिबाउंड भाई, आपके पास लंबे प्लेयर हैं, वो दोनों तरफ मौजूद रहते हैं। दिस इज दीक्षा अगेन, फाउल कॉल्ड और फ्री थ्रोज हमें देखने को मिलेंगे। और 3 पर्सनल फाउल रवि इस क्वार्टर में भी महाराष्ट्र ने कर लिए हैं। इनफैक्ट ये चौथा था और Maharashtra have immediately called a timeout. Need to regroup because they are giving too much away. Already the lead 20 in favor of Rajasthan, taking full advantage of the opportunities that have come their way. So coach Rajesh Kshetriya had absolutely no option but to call them out. यहाँ टोटल गेम में आप 5 टाइम आउट ले सकते हैं। पहले 2 क्वार्टर्स में ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम आउट ले सकते हैं। बचे हुए 2 क्वार्टर्स में आप 3 टाइम आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर गेम में 2 मिनट रह जाएं, उस समय अगर आपके पास तीनों टाइम आउट बचे हों तो आखिरी 2 मिनट में आप 3 टाइम आउट नहीं ले सकते, मैक्सिमम 2 टाइम आउट ले सकते हैं। टाइम आउट का इस्तेमाल बहुत ही चतुराई से कोचेस करते हैं। सपोज जैसे अभी फ्री थ्रोज मिले हैं राजस्थान को, तो महाराष्ट्र के कोच ने टाइम आउट ले लिया उनके रिदम को तोड़ने के लिए। अंतिम समय में अगर 1-2 पॉइंट की लीड विरोधी टीम के पास हो, कोच तब तक टाइम आउट बचा के रखते हैं ताकि मोमेंटम तोड़ा जाए गेम का। ये बहुत बड़ा हथियार है कोच के पास, टाइम आउट। Yes, timeout has got to be used judiciously by the coach, and coach or any player
on court can signal the timeout to the technical bench. At the moment, it is Rajasthan on the free throw line. That's Diksha Parikh, number 12. Oh, missing the first. Second free throw also missed, but Rajasthan have a chance and they will get a point as well as a throw. So this will be a 3-point play. 2 points counted there, and then she goes to the free throw line because the foul was committed. Things going from bad to worse for Maharashtra. Possession. Timeout, Rajasthan. Nisha Rajesh, their coach, having a chat. But Rajasthan need not worry because they have things pretty much under control. 4 minutes 37 seconds remaining in the second quarter, and the score 38-16 in favor of Rajasthan. Lead of 22 now, and getting better and better for Rajasthan because Maharashtra's shooting has been pretty off the mark. That's operative line, Ravi, absolutely. हालांकि 22 पॉइंट की लीड बास्केटबॉल में कोई बड़ी नहीं मानी जाती, सिर्फ 8 पॉइंट प्ले है ये, 8 प्ले गेम है। लेकिन जिस तरह की नंबर 1 शूटिंग रही है महाराष्ट्र की, बहुत खराब रही है, इवन मिड रेंज उनके नहीं लगे हैं। दूसरी बड़ी बात, बहुत ही फाउल प्ले हो रहा है। इसी क्वार्टर में 4 पर्सनल फाउल महाराष्ट्र की प्लेयर्स ने किए हैं। राजस्थान ने बेहद डिसिप्लिन्ड खेल दिखाया है, एक भी पर्सनल फाउल उन्होंने पिक नहीं किया है इस क्वार्टर में। तो सब कुछ राजस्थान के फेवर में है। 22 पॉइंट आप आराम से कवर कर सकते हैं, सिर्फ आपको 7 3 पॉइंटर चाहिए, लेकिन इजियर सेट देन डन, खास तौर पे महाराष्ट्र की खराब शूटिंग को देखते हुए। Maharaj, you are talking now about not about Maharashtra, but looks like you want people like Allen Iverson or John Stockton to be getting onto that 3-point line. Steph Curry, and so on and so on. Dwight Howard, Nikola Jokic जैसा एक सेंटर हो तो क्या बात है, लेकिन इस पास की क्या बात है, क्या गैदर कर लिया जाएगा? बैंक शॉट आया जरूर है, लेकिन पॉइंट नहीं आया है। Very tough one there for Rajasthan because momentum carried her behind the board, tried to get it off just as she went under the board. Very tough angle. Again Sia Tiwari, तकरीबन बॉल स्टील करने की कोशिश, उनके हाथों से खींचने की कोशिश थी। ये पर्सनल फाउल ही कॉल किया गया है बिल्कुल राजस्थान प्लेयर पर। ये पहला पर्सनल फाउल बिल्कुल उनके खिलाफ, और महाराष्ट्र अब बॉल को इनबाउंड करेंगे। She's gone inbound because of the first, not a shooting action. So the referees have ruled that it was a personal foul and not going onto the free throw line this time. Yes, shooting foul. Foul was committed. We call it a shooting foul because the foul was committed in the action when the player is trying to take a shot. There you see, taking a shot while the hand from behind hit the elbow. So that is a shooting foul. Sanvi goes to the Shomira goes to the free throw line, gets the first one on target. क्योंकि शोमिरा 2 पॉइंट शॉट अटेम्प्ट कर रही थी, उन पर फाउल हुआ तो 2 फ्री थ्रोज मिले। अगर वो 3 पॉइंट अटेम्प्ट कर रही होती, फिर उन पे फाउल होता तो 3 फ्री थ्रो मिलते। लेकिन अगर शूट कर लिया जाता, चाहे 2 पॉइंट की कोशिश होती, चाहे 3 पॉइंट की, तो एक शोमिरा ने बॉल को स्टील किया है। दिस शुड बी इजी। क्या डंक लगेगा, लेअप लगेगा, ऑफेंसिव रिबाउंड पे भी स्कोर नहीं हुआ। महाराष्ट्र हैज मेड अ मेस ऑफ दैट बॉल, रवि। Rajasthan will keep possession. Beg your pardon, it's Maharashtra who will keep possession. So they have another opportunity. Missed too easy and this time lost the ball easily as well. But some confusion in the Rajasthan ranks. Communications not the best. Rajasthan making Maharashtra suffer for their
poor shooting as well. Just 3 3-point attempts we've seen so far and only 1 on target. और राजस्थान ने तो इनफैक्ट 3 पॉइंट अटेम्प्ट भी नहीं किया, जहां तक मुझे याद है। उनको मालूम है कि इस एज ग्रुप में यहां से 22-23 फीट से शॉट लगाना मुश्किल है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले हैं। शिमोरा स्टील करने में कामयाब हुई है। क्या मिड रेंजर आएगा? साथियों की तलाश हो रही है। अच्छा डबल टीम उनको किया गया है। अब उनके साथी सिया पहुंची हैं। मिड रेंजर फिर से नाकामयाब। Maharashtra paying for their poor shooting. They are not that they are not getting the chances. They are getting the chances, but their shots have been way off target. Ball will remain with Maharashtra, but Rajasthan defense working really hard. 20 points the lead. 3 minutes to go in the second quarter. Maharashtra need to regroup and come back. And the hard taskmaster that Sunil Taneja is, he would call it only a 7-shot play, 7 3-pointers. That's a reality, Ravi. We haven't had 7 attempts from 3-point line so far in this entire match. आई थिंक जब हम अंडर 21 कैटेगरी में जाएंगे रवि, क्योंकि अभी हमें और बास्केटबॉल कवर करना है कल, वहां ज्यादा 3 पॉइंटर हमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली बॉयज कैटेगरी में। शॉट क्लॉक देखिए रीसेट कर दिया गया। 24 सेकंड के अंदर आपको शॉट लेना है, लेकिन अगर मान लीजिए आखिरी सेकंड में भी बॉल रिम को लग के ऑफेंसिव टीम के प्लेयर के हाथ में आती है तो 14 सेकंड पर ये देखिए दोबारा से 14 सेकंड पर रीसेट कर दी गई है शॉट क्लॉक। टीवी के नीचे देखते जाइए, लेकिन उसका फायदा महाराष्ट्र नहीं उठा पाए। सिया ड्राइव करके अंदर गई हैं, फाउल ड्रॉ करने में क्या वो कामयाब रही? क्या ये फ्री थ्रोज हैं? जी नहीं, बिल्कुल फ्री थ्रोज मिलेंगे। ये शूटिंग फाउल कॉल किया गया है और चौथा पर्सनल फाउल राजस्थान का इस क्वार्टर में। 2.5 minutes to go, and every foul here on by either team will take the opposition to the free throw line. Now you got to pick your players who are not great. Both free throws on target. No problems there. Lead still with Rajasthan. 18 points the advantage as another timeout called. This is the second timeout for Rajasthan. You're allowed 2 timeouts before halftime and 3 after halftime. If you don't take your both, you don't carry it over. और जो दूसरे 2 क्वार्टर में यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर में आपको जो 3 टाइम आउट मिलेंगे, आखिरी 2 मिनट जब गेम के बचते हैं वहां तक आप सिर्फ 2 टाइम आउट ही कैरी करेंगे। अंतिम 2 मिनट में अगर आपके पास तीनों टाइम आउट बचे हुए हैं तो आप सिर्फ 2 ही ले पाएंगे, 3 नहीं ले पाएंगे। तो कोचेस बहुत ही सोच समझकर जुडिशियली अपने टाइम आउट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप बी महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान, 18 पॉइंट की लीड राजस्थान की है और जया के साथ विजय भी आनंद उठा रहे हैं बास्केटबॉल का। पहली बार आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में बास्केटबॉल का एक्शन देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको तपस्या ले जाएंगे सोनापुर में, वहां साइकिलिंग का लाइव एक्शन दिखाएंगे और वहीं से ही आज शाम इंडोर स्टेडियम में जहां कबड्डी हुई थी, आज ग्रेको रोमन रेसलिंग के मुकाबले होने हैं और भारत के ग्रेको रोमन रेसलर सुनील कुमार आज वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट में गोल्ड मेडल का बाउट लड़ने वाले हैं, जिसकी अपडेट हम आपको शाम को दे देंगे। That event being taking place in the Italian capital of Rome. रोम गोल्ड पुकारे रवि। Well, steal by Maharashtra, fast break, and yes, easy layup there for Maharashtra. So a good start. Bhumika picking up the first 2 points after that timeout. 2 minutes remaining in the game before halftime. Lead 16 points the lead. Make that 18. Another easy layup. महाराष्ट्र का कंटिंजेंट हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल लेफ्ट में है। चाहे एनबीए हो, चाहे फीबा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, जो भी टीम डिफेंसिव एंड पे होती है उनके सपोर्टर, उनका कंटिंजेंट हमेशा डिफेंस 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 चिल्लाता है कि भैया स्कोर मत होने दीजिएगा। अब महाराष्ट्र एडवांटेज में है तो वो कंटिंजेंट काफी खुश है।
18 पॉइंट से पीछे जरूर हैं, लेकिन फ्री थ्रोज मिलेंगे। ये देखिए किस तरह से फाउल किया गया, नॉन शूटिंग फाउल था, लेकिन राजस्थान इस क्वार्टर में पहले ही 4 पर्सनल फाउल कर चुके हैं। तो हर एक फाउल, चाहे वो शूटिंग के दौरान किया गया हो, चाहे वो नॉन शूटिंग फाउल हो, आपको फ्री थ्रो दिलवाएगा। First one missed. Now that foul, as they say, won't hurt Rajasthan too much. Second one on target. There you see from the free throw line, getting it on target. So still 17 behind as 90 seconds remain on the game clock now. Ball being moved around for Rajasthan by Manavi Srivastava, the point guard. Diksha in trouble but gets the ball away. Shot clock running down and they get the shot off and on target as well. 1.5 seconds was remaining on the shot clock. सबसे हमने करीबी शॉट ये देखा है, 24 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन के नीचे स्कोर के ऊपर देखिए। जब आपको बॉल मिले 24 सेकंड की शॉट क्लॉक चलती है और 24 सेकंड खत्म होने से पहले बॉल ऐसे हाथ से रिलीज होनी चाहिए। अगर रिम को लग के आपके साथी के पास गई तो वापस 14 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। ये सिया है टीम की पॉइंट गार्ड, टीम की जनरल, ड्राइव करके अंदर आई। वेरी गुड प्लेयर बाय सिया, गुड टू पॉइंटर। Wonderful drive there between two players. Just pierce the defense without any problem. महाराष्ट्र का कंटिंजेंट फिर से डिफेंस बोल रहा है, उनको पॉइंट बचाने हैं। अच्छा, ये एयर बॉल हो गया था, बॉल को मेलोडी ने गैदर किया। काउंटर की तैयारियां 8 सेकंड से पहले मिड लाइन को क्रॉस कर लिया। क्या यहां डाउनटाउन से कोशिश की जाएगी? 3 पॉइंट आर्क के बाहर प्लेयर है, यहां से अगर स्कोर कर लिया तो 3 पॉइंट मिलते हैं। ड्राइव करके पेंट में आई, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको पेंट कहा जाता है। इसके अंदर से लिए गए पॉइंट्स इन द पेंट कहे जाते हैं। 2 पॉइंट इन द पेंट नहीं मिले। Could be the final shot. Rajasthan is not interested. Game clock runs out. So the second quarter also ends in favor of Rajasthan. 25-42. 17 points the lead, and Rajasthan have shown much better teamwork than Maharashtra, and the shots on target, converting their attempts with great regularity. So Rajasthan taking advantage of better shooting. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां बास्केटबॉल गेम के 2 क्वार्टर्स का खेल बाकी है, ये महाराष्ट्र की टीम है जो कि पहले क्वार्टर में 12 और दूसरे में सिर्फ 13 ही पॉइंट ले पाई थी। अच्छी बात इनके लिए इकलौती ये रही है कि इस पूरे गेम का इकलौता 3 पॉइंटर महाराष्ट्र ने स्कोर किया था, वो भी पहले क्वार्टर में। बचे हुए 2 क्वार्टर्स में, यानी कि मैच के हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल दिए जाते हैं, डायरेक्शन बदल दी जाती है। महाराष्ट्र अब आपकी स्क्रीन के लेफ्ट टू राइट अटैक कर रही है, राजस्थान राइट टू लेफ्ट अटैक करेगी। Foul away from the ball. Don't see that too often. But the foul going against Rajasthan. So Rajasthan pick up an early foul. And inbound by Maharashtra. Siya Devdar with a 3-point attempt and off the rim. She's been the only player brave enough to shoot from beyond the arc, but only one successful shot so far in the entire match out of 5. हमने कई अच्छे पॉइंट गार्ड देखे हैं रवि, स्टेफ करी जैसे, जो बड़ी अच्छी 3 पॉइंट शूटिंग करते हैं। सिया अभी अंडर 17 में है, लेकिन बड़ा ब्राइट प्रोस्पेक्ट है। भक्ति के पास बॉल है, अपने पॉइंट गार्ड सिया को ढूंढा है, डॉज देते हुए अपने साथी को सिया ने बॉल दिया। मिड रेंज जंपर तकरीबन 20 फीट से डिफेंसिव रिबाउंड मिला राजस्थान को। काउंटर की तैयारियां शुरू, ये है मानवी राइट विंग से अटैक करती हुई, ड्राइव करके खुद ही अंदर आई है, पर बॉल उनसे स्टील कर ली गई है। जो प्लेयर बॉल छीनता है विरोधी से, स्टील का पॉइंट उसके फेवर में आता है। और आपको बता दूं, पॉइंट, स्टील, असिस्ट, रिबाउंड, ब्लॉक, किन्हीं 2 कैटेगरीज में अगर आपने डबल डिजिट में स्कोर किया वो डबल डबल कहलाएगा। 3 कैटेगरीज में अगर आपने डबल डिजिट में स्कोर किया वो ट्रिपल डबल कहलाएगा। At the moment, I think Maharashtra is struggling in all categories. Siya Devdar bring the ball up for Maharashtra. Maharashtra still waiting for the first points in the second half.
Another one missed there. So Rajasthan have an easy walk now. 17 points the lead. They can afford to take their time. Remember, they have 24 seconds to get that shot off. 8 seconds to bring the ball up. Normally it's about 3 seconds that is taken. And what a turnaround! Layup. Himanshi Tiwari doesn't have a shirt number on her back, so we had to. Beg your pardon, it is number 8. Himanshi Tiwari who did the turn, getting good. Another three-pointer this time from a difficult angle. Fast break going through. Manavi scores. बैक स्कोर राजस्थान के लिए, पहले हिमांशी, उसके बाद मानवी। 1 वर्सेस 1 को कितना आसान बनाया, लेअप का सहारा लिया, आराम से बैंक शॉट लगाया इन्होंने। And when things start going bad for you, this is what happens. The player putting the ball inbound dropped it. No player, no other teammate realized that the ball was already in play. So she had no option but to pick it up herself, handing the possession to Rajasthan. Rajasthan, unfortunately for them, couldn't take advantage of that opportunity. Trying to drive in, Sia Devdar leaves it outside. Again, shooting trouble there for Maharashtra. Very, very good steal from Rajasthan. 2 versus 1. बिल्कुल हिमांशी ने इस क्वार्टर में दूसरी बार स्कोर किया है। 6-0 से राजस्थान इस क्वार्टर में महाराष्ट्र को आउटस्कोर कर रहा है। And this is going to be a 3-point play possible. 2 points have already been scored by Himanshi and she's been sent to the free throw line because of the foul as she went for the shot. Missed it. 3-point प्ले पूरा नहीं हुआ। जब आप शॉट लेते हैं आपको फाउल किया जाए, अगर तो शॉट लग गया तो एक ही फ्री थ्रो मिलेगा, अगर शॉट नहीं लगा तो जितने पॉइंट का शॉट आप अटेम्प्ट कर रहे थे उतने फ्री थ्रो मिलेंगे। इसे हिमांशी ने 2 पॉइंट प्ले अटेम्प्ट किया, उनके टीममेट के पास बॉल है, दूसरे साथी मौजूद, बैंक शॉट अटैक, स्कोर सोनल महाला ने किया। Maharashtra looking a little disheartened there and completely disorganized. 2 blue shirts under the rim, no dark shirts. Still struggling to get that shot away. So Rajasthan brings. 25 points the lead for Rajasthan. So Maharashtra need Rajasthan have the ball. Himanshi Tiwari has had the hot hands under the rim. Driving in. Again fighting for the ball under the rim. Possession will stay with Rajasthan. डबल थम्स अप दिया मैच रेफरी ने। ये देखिए यहाँ फाउल रूल करना बड़ा मुश्किल है, कॉमन बॉल हो गई है, लेकिन बॉल जो है वो राजस्थान के पक्ष में आने वाली है। इनबाउंड राजस्थान करेंगे, मानवी नंबर 3 इनबाउंड करेंगी और लो पोस्ट में उनकी प्लेयर मौजूद है, लो पोस्ट यानी कि रिम के बिल्कुल नीचे, लेकिन सिया ने डिफेंसिव रिबाउंड लिया। जब बॉल रिम को लगे और डिफेंस की टीम का कोई प्लेयर बॉल को गैदर करे वो डिफेंसिव रिबाउंड होता है। बॉल रिम को लगे और अटैक करने वाली टीम का कोई प्लेयर बॉल को गैदर करे वो ऑफेंसिव रिबाउंड होता है। ये आप खुला मैदान है, आप डंक लगाइए, आप प्ले अप कीजिए, आप स्कोर कीजिए। 10-0 से आउटस्कोर कर रही है राजस्थान महाराष्ट्र को थर्ड क्वार्टर में। रवि, The teams had gone into the halftime break with the score at 42-25.
And at the moment, the score stands at 52-25. So Maharashtra yet to score in 4 minutes 41 seconds of play in the third quarter. That's how tough the going has been for the Maharashtra girls in this under-17 contest. और अभी दूसरे क्वार्टर में महाराष्ट्र की हालत इतनी बुरी नहीं थी. 19-13 दूसरे क्वार्टर का स्कोर था, लेकिन थर्ड में वन वे ट्रैफिक अभी भी उनको वंचित रखा हुआ है स्कोर करने से. पोजीशन महाराष्ट्र की है, पर 5 मिनट का खेल, एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया. शॉट क्लॉक देखिए, 4 सेकंड बाकी है. 4 सेकंड में आपको बॉल रिलीज करना है, शॉट लेना है. अगर बॉल रिम को लगकर वापस महाराष्ट्र प्लेयर के पास आया तो 4 सेकंड को रीसेट करके 14 सेकंड कर दिया जाएगा. Challenge now is that they've got to get the shot off in those 4 seconds. There, quick shot taken off the range, back to 14. Second attempt, again missed. Fighting for the ball. The whistle go went very early. So the ball will stay with Maharashtra, but now they've got a breather. There you see 2 attempts made, none of them successful. Now they can breathe easy. 14 seconds. 14 सेकंड में बॉल आपके हाथ से रिलीज हो जानी चाहिए स्कोरिंग के लिए. और बॉल मिल रही है, शूटिंग स्पेस नहीं दे रहे राजस्थान के प्लेयर. दिस इज गुड प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग. एक्सीलेंट डिफेंस, जबरदस्त ब्लॉक, स्टील किया गया. नंबर 3 ले मानवी इज द स्टार. 12-0 से 12 रन इस क्वार्टर में राजस्थान के फेवर में. अद्भुत शुरुआत उनके लिए यहाँ. There you see the ball being turned over. This time, no problem. So first points for Maharashtra in the second half. 27-54. 2 points for them. 27, double the score for Rajasthan. Rajasthan can afford to relax a bit and possibly try out more players from the bench. Absolutely, रवि. खराब शूटिंग महाराष्ट्र की रही है. राजस्थान ने डिफेंस बहुत अच्छा किया है. एमिंग फ्रॉम डाउन 3 पॉइंट की कोशिश थी, आसानी से बॉल. ये तो टर्नओवर कमिट किया है महाराष्ट्र ने. अगेन नंबर 3 नॉट फाइंडिंग द रिम दिस टाइम. उनके साथ सपोर्ट मौजूद है. इत्मीनान से फिर दोबारा से बॉल को गैदर किया. हिमांशी के पास मौका है, पेट में जाके पॉइंट लिया. रेक्टेंगुलर एरिया अंडर द रिम इज कॉल्ड पेट. और वहां अगर आप पॉइंट लेते हैं तो पता चलता है कि आपकी ओपोनेंट टीम का डिफेंस कितना खराब है. Normally that area is marked in a different color, but because here the basketball is being played in a multi-purpose stadium where painting the floor may not be the best option, so the officials have left it as natural, and shot clock ran out for Maharashtra this time. 24 seconds. They have, in the last 3 or 4 plays, they have been in shot clock trouble right from the word go. Not aware that they get just that lack of confidence. Just 2 points in the third quarter. That's all they have to show for the whistle. Foul off the ball. और कोई टाइम आउट भी कॉल नहीं किया है महाराष्ट्र के कोच ने. टीम स्कोरिंग में स्ट्रगल कर रही है. डिफेंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है महाराष्ट्र का. टर्नओवर पर टर्नओवर कमिट किए जा रहे हैं उनके प्लेयर्स, और कोच ने अब तक टाइम आउट नहीं लिया. पुल अप जंपर था, लेकिन अभी भी बॉल राजस्थान के पास है. मानवी स्ट्रगलिंग टू फाइंड द शूटिंग स्पेस. यहां महाराष्ट्र का डिफेंस थोड़ा बेहतर है. पॉइंट इन द पेंट वंस अगेन. आराम से मिड रेंजर आया राजस्थान की नंबर 7 सोनल महाला के लिए. Certainly the defensive work by Maharashtra leaves a lot to be desired, and on the offensive board as well, not the cleanest. That's the second block we've seen on the 3-point line, and that is because the taller Rajasthan players are charging out. Now once again, 6 seconds on the shot clock. That is the trouble for Maharashtra.
Under 2 minutes to go. Still passing the ball about. Is she aware? No way. No way. Second time they have ran the shot clock out without even looking at the board. ठीक कबड्डी में जैसे 30 सेकंड के अंदर आपको अपनी रेड खत्म करके अपने कोर्ट में वापस आना है, बास्केटबॉल में 24 सेकंड खत्म होने से पहले आपको बॉल रिलीज करना है, शॉट लेना ही लेना है। यहां शॉट लिए भी जा रहे हैं, स्कोर लगातार हो रहे हैं। दिस टाइम अगेन मानवी द सुपरस्टार ऑफ थर्ड क्वार्टर। लुक एट दैट रवि, कितना खूबसूरत बैंक शॉट लगाया। And remember, she brought the ball from the center line. Defense from Maharashtra just parted ways, and this time under the rim. Moving the ball about Rajasthan. There you see ball with Manvi Srivastav. Had a good start, good shooting in the first and third quarters. Second quarters she was more busy with distributing the ball. 60-27. Lead now 33 for Rajasthan. Again, turnover committed. Ball picked up by Himanshi Tiwari. Will go to free throw line. ये फिर से शूटिंग में इन द एक्ट ऑफ शूटिंग, देखिए शूट कर रही थी, उनको फाउल किया गया। जब आप एक्ट ऑफ शूटिंग में फाउल करें तो 2 पॉइंट के लिए शूट कर रही थी तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। द सेम प्लेयर हिमांशी विल गो टू द फ्री थ्रो लाइन। ये रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल के एंड में जो लाइन है वो फ्री थ्रो लाइन है। 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, हर एक फ्री थ्रो का 1-1 पॉइंट मिलता है अगर वो नॉक डाउन हुआ तो। Call it the free throw because there is no opponent blocking you. It's a free passage to the basket. Also called charity stripe, क्योंकि बिल्कुल चैरिटी में पॉइंट बट रहे हैं। हॉकी में, फुटबॉल में आपको जो फ्री किक या पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है वहां तो सामने गोलकीपर रहता है, यहां कोई विरोधी नहीं, खुला मैदान है। पहला फ्री थ्रो मिस कर दिया हिमांशी ने, तो मैक्सिमम हम 1 ही पॉइंट उनको मिल सकता है बचे हुए फ्री थ्रो से। Second one also rejected by the rim. But now Maharashtra. Time running out. Can they get one? Oh no, another bad pass picked up easily by Bhumika Singh. Himanshi Tiwari. Shirt number 8, Himanshi Tiwari. Manvi Srivastav back to Himanshi. कंप्लीटली मिस टाइम। टर्निंग फ्लोटर लगाने की कोशिश थी, कामयाबी मिली नहीं। आखिरी सेकेंड है, तीसरा क्वार्टर खत्म। सबसे सफल क्वार्टर राजस्थान के लिए रहा है। उन्होंने 18-2 से, इनफैक्ट सबसे सफल उनका पहला था, लेकिन अगर कंपैरिजन में देखें थर्ड क्वार्टर में राजस्थान ने महाराष्ट्र को 18-2 से आउटस्कोर किया। महाराष्ट्र ने पहले क्वार्टर में 12, दूसरे में 13 पॉइंट लिए थे और तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 2 पॉइंट रवि। Well, the only thing they did right was they didn't get into foul trouble. Finished the quarter with just 4 fouls and did not give away anything after that. But that will not win you games. Maharashtra on big trouble. 33 points the lead for Rajasthan. 60-27 at the end of 3 quarters. And this is Manvi Srivastav of Rajasthan, who's been one of the prime movers of the Rajasthan shooting and gameplay. टीम के सबसे बेहतरीन गार्ड्स में से एक हैं, चाहे उनको लूज बॉल मिली हो, चाहे ये अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में आई हो। मानवी आज काफी जबरदस्त स्कोरिंग कर रही हैं। छोटी हाइट है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेनिफिट मिलता है। पुल अप जंपर आप कमाल के लगा सकते हैं। आखिरी 10 मिनट, आखिरी क्वार्टर, दोनों टीम्स की अटैक की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। राजस्थान राइट टू लेफ्ट ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं। ये है मानवी और हिमांशी, अच्छे हैंडल दिखाती हुई बैंक शॉट लगाया। ऑफेंसिव रिबाउंड मानवी को मिला है, मिड रेंजर नहीं लगा निशाने पर। Now what do you say to that? The top scorer for Rajasthan hits the board, missed the rim, and that was Himanshi Tiwari. And then it is Bhumika now
Rajasthan allow Melody to go through. For a change, the first points in the quarter picked up by Maharashtra. They've got to pick up lots more. Good drive there between two defenders. Himanshi Tiwari. Offensive foul. Using a shoulder to get the defender out of the way. That is not allowed. ऑफेंसिव फाउल भी आपके पर्सनल फाउल के कोटा में शामिल किया जाता है, यानी कि अटैक कर रही टीम का प्लेयर डिफेंस के प्लेयर पे अगर शोल्डर से या किसी भी तरह से हमला करता है तो वो ऑफेंसिव फाउल है, वो भी पर्सनल फाउल के कोटा में गिना जाएगा। और ये देखिए जो ऑफेंसिव फाउल हमने पहले, ये देखिए शोल्डर चार्ज किया, अटैकर ने डिफेंडर पे चार्ज किया तो इसलिए बॉल उनसे छीन ली गई। यहाँ एक प्लेयर मैक्सिमम 4 पर्सनल फाउल कर सकता है पूरे गेम में, 5वां फाउल किया तो यू विल बी इजेक्टेड। बट राइट नाउ हिमांशी, जिन्होंने पिछला ऑफेंसिव फाउल किया था, इस बार आराम से जाके पेंट में 2 पॉइंट भी लिए। This time absolutely no contact, just weaved away between two defenders. Score the lead still 33. This time long midway attempt, not on target, fast break, and it is Manvi Srivastav once again on the fast break. Normally the point guards are the quickest players on court and just sprinted down the court to score another 2. क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बड़ी छोटी है। सिया ये देखिए छोटी हाइट की टीम की पॉइंट गार्ड है और ये फाउल ड्रॉ करने में कामयाब रही हैं। फाइनली महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छी खबर है, 2 पॉइंट ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं और खुद अब टीम की पॉइंट गार्ड सिया फ्री थ्रो लाइन पे आई हैं। एक्ट ऑफ शूटिंग में उनको फाउल किया गया, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए वो टारगेट कर रही थी तो उनको 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। अगर स्कोर हो जाता तो 1 फ्री थ्रो मिलता। No success there. Remember, we are in the 4th and final quarter. 4 quarters of 10 minutes each. Under 17 girls action. Second one converted by Sia Devdhar. Change being called. And here's the shot once again. Clean. Sia Devdhar is possibly the lone ranger battling for Maharashtra at the moment. और अब इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में शोमिरा ने बड़ा अच्छा प्ले दिया। ओह, एमिंग फ्रॉम पटियाला टू पौंडीचेरी, नॉट सक्सेसफुल दैट टाइम और फाउल कॉल किया गया है। तकरीबन 26-27 फीट से अटेम्प्ट लिया गया था, लेकिन ये एक्ट ऑफ शूटिंग में फाउल हुआ है। भूमिका पर लंबी प्लेयर हैं और जाहिर तौर पे फ्री थ्रो लाइन पे वो गई हैं। 2 फ्री थ्रोज, क्योंकि 2 पॉइंट का वो अटेम्प्ट ले रही थी। टेक्निकल फाउल होता है तो 1 फ्री थ्रो मिलता है। टेक्निकल फाउल है व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट द स्पोर्ट और द ऑफिशियल और द ओपोनेंट, तो वो टेक्निकल फाउल होता है। वो आपके जो पर्सनल फाउल का कोटा है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। But that counts against the team fouls and also earns the opposite side a free throw. This time foul called against Rajasthan. So something finally going the way of Maharashtra. Lead 34, long attempt, good offensive rebound. Let's keep possession. Will they be able to? No, they can't. रवि, रिम के नीचे हाइट का डिसएडवांटेज साफ मिल रहा है महाराष्ट्र से। अगेंस्ट एंड शी इज द स्टार मानवी, द गोल्डन गर्ल ऑफ राजस्थान टीम। इनको बॉल दीजिए चाहे सेंटर कोर्ट में, चाहे अपने रिम के नीचे। इफ शी गेट्स अ बॉल, शी विल स्कोर। Good conversion from right under the rim. And this is hoop and harm. अगर आपने स्कोर कर लिया, एक्ट ऑफ शूटिंग में फाउल हुआ तो आपको 1 थ्रो मिलेगा। हुप किया, हार्म करने का मौका। शी कंप्लीट्स द 3-point प्ले। वेल डन। पहला 3-point प्ले, पहला हुप एंड हार्म राजस्थान के लिए। Definitely hurting Maharashtra with every shot. Rajasthan, Maharashtra girls now looking for ways to control the damage, but still 37 points behind. राजस्थान चाहे तो इनफैक्ट अपनी पूरी बेंच खिला सकता है रवि। सारे के सारे आप डिफेंडर भी खिला दीजिए, पॉइंट गार्ड को बाहर बुला लीजिए। 7 मिनट में 37 पॉइंट तो हमने NBA लेवल पर भी कवर होते नहीं देखे हैं। इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स में इतना डेफिसिट कवर करना मुश्किल है। खैर, महाराष्ट्र के पास लीड कम करने का मौका है। दे विल इनबाउंड द बॉल।
सिया टीम के अकेली खिलाड़ी जिसने आज प्रभावित किया है। अच्छा डॉज दिया ना, शॉट लगते ही पता लग गया था, और हाइट का एडवांटेज राजस्थान रिम के नीचे हमेशा से उठाने में कामयाब रहा है। इजी शॉट मिस कर दिया इस बार मानवी ने। कॉमन बॉल रूल होगी क्या? बिल्कुल। Rajasthan have started trying more players from the bench. We see Jia Tiwari now all set to inbound the ball. Turnover, but Himanshi. Rare ball. I've seen quite a few of them from Rajasthan in the fourth and final quarter. Seems to have just gone off. उनको लगता है कि अब जो गेम है अपने कब्जे में आ गया है। बास्केटबॉल में गेम कहा जाता है खेल को। उनको लगता है गेम अपने कब्जे में आ गया है, अब आराम से थोड़े से ये फाउल कॉल किया गया है। जिया तिवारी जो अभी प्लेयर आई हैं राजस्थान की, क्या ये एक्ट ऑफ शूटिंग में था? जी नहीं, नॉन शूटिंग फाउल था। अगर एक्ट ऑफ शूटिंग में होता तो महाराष्ट्र को 3 फ्री थ्रोज मिलते, क्योंकि 3 पॉइंट आर्क के बाहर किया गया था। इस बार सिया की कोशिश, डिफेंसिव रिबाउंड मिला है राजस्थान को। हाइट का एडवांटेज है, हाइट का एडवांटेज था, इसीलिए डिफेंसिव रिबाउंड आराम से भूमिका ने ले लिया। But good fight there, plucky Melody Menezes. There you see the defense, and Melody Menezes doesn't give up. Fights for the ball and so keeps a possession for Maharashtra. With the shot clock down to 9. Have they lost it? Yes, it could be a backcourt violation. There is a backcourt violation called. Backcourt violation is when the ball comes back into your court without touching an opponent, and that is against the rules. So that was a backcourt violation by Maharashtra because the ball had come off their own players. Oh! पटियाला से शॉट लिया, पौंडीचेरी में स्कोर हुआ पहला 3 पॉइंटर ये राजस्थान का। इससे पहले 3 पॉइंट प्ले हमने देखा है। लुक एट दैट, हिमांशी पुल अप किया और निशाना बिल्कुल सही, पहला 3 पॉइंटर। Good deflection from Sia Devdar. Prevented the fast break by Rajasthan. Here's once again Himanshi Tiwari, left hand shot, absolutely on target. सिर्फ दूसरा 3 पॉइंटर है इस गेम का, पहला महाराष्ट्र ने लगाया था और आराम से ये 2 पॉइंटर लेने में कामयाब राजस्थान। अंकिता ने स्कोर किया, 42 पॉइंट की लीड, 4.5 मिनट का टाइम बाकी, और फाइनली एक टाइम आउट कॉल किया गया है। महाराष्ट्र उम्मीद थी कि ज्यादा टाइम आउट कॉल करेंगे, 3 उनके पास थे। Well, so they have given up, Ravi. Well, thrown in the towel, I would say, Maharashtra, because they know their lead is now 42 in favor of Rajasthan. Nothing going right for Maharashtra, and they are now possibly looking at the upcoming battles against Haryana and Tamil Nadu. If they can win those, they will still remain in the semi-final reckoning. Maharashtra timeout. Coach Rajesh Kshetriya having a chat with the girls. और जो बाकी 2 टीम्स का रवि आपने नाम लिया, इस ग्रुप में हरियाणा और तमिलनाडु बहुत तगड़ी टीम्स हैं। याद रखिए, हरियाणा और तमिलनाडु ने ही पिछली बार 2-2 गोल्ड लिए थे बास्केटबॉल में। तमिलनाडु सबसे बड़ा पावर हाउस, हरियाणा 2। तो महाराष्ट्र के लिए बचे हुए 2 गेम्स जीतना बेहद कठिन है। हाँ, ये ग्रुप ऑफ डेथ मान सकते हैं। राजस्थान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, सो इज तमिलनाडु, सो इज हरियाणा। तो इस ग्रुप बी से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी, वी विल हैव टू वेट एंड सी। 3-point attempted outside rim, ball taken, fast break, and now easy layup there for Vaibhavi Vijayvargiya, another new player on court for Rajasthan. So Rajasthan bench as quite to expectations, trying out their bench. Another fast break was in the making. Vaibhavi was waiting near the opposite rim. वैभवी एक बार फिर से, ये शूटिंग फाउल है, शूट कर रही थी, उनको फाउल किया गया, हाथ पे हाथ मारा गया। 2 फ्री थ्रोज वैभवी को मिलेंगे। अगर ये शूट हो जाता तो 1 फ्री थ्रो मिलता। So Vaibhavi Vijayvargiya goes to the free throw line. 2 shots for her. Oh, first one comes off the board.
Not that Rajasthan will regret it. And Ravi, this was the fourth personal foul committed by Maharashtra team in this quarter. तो इसके बाद जितने भी वो इनफैक्ट थर्ड था, राजस्थान की टीम 4 फाउल कर चुकी है। राजस्थान की टीम कोई भी प्लेयर अगर अब फाउल करता है तो महाराष्ट्र को 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे। महाराष्ट्र ट्राइंग हार्ड कि जाते जाते आखिरी 3.5 मिनट में स्कोर किया जाए। स्टील्स द बॉल, मानवी विल स्कोर फॉर श्योर, शी डज। Manvi Srivastava showing great court presence there. The steal and then going in for an easy layup. यूरो स्टेप नहीं देखने को मिले, अंडर 17 है, हो सकता है अंडर 21 में देखने को मिले। शूटिंग स्पेस मिला है, कॉर्नर 2 की कोशिश थी, 3 की तो नहीं थी। 2 3 पॉइंटर हमने देखे हैं, 1 3 पॉइंटर इन्होंने स्कोर किया था। हिमांशी जिनके पास बॉल है, बैंक शॉट लगाने की कोशिश, डिफेंसिव रिबाउंड नहीं आया। दिस इज मानवी। देखिए लंबे लंबे जो प्लेयर है अंकिता, वो हमेशा आपको पोस्ट के नीचे दिखाई देंगे। हिमांशी एक और 3 पॉइंटर अटेम्प्ट नाकामयाब। शॉट क्लॉक एक्सपायर होने से पहले बॉल अंदर गई थी, ऑफेंसिव रिबाउंड आया था, लेकिन बॉल उसके बाद छिटक गई हाथों से। Maharashtra struggling to get their act together. Under 2.5 minutes remaining on the game clock. Only 3 points is this quarter. It's been a famine situation for Maharashtra. They got 2 in the third quarter and 3 in the fourth quarter. Air ball. That's a surprise from Himanshi Tiwari. It's normally a very steady shooter. Just seems to have gone off the boil. रवि, इस एज कैटेगरी में 15-16 साल की लड़कियों में, इन एथलीट्स में 3 पॉइंट शूटिंग ऑब्वियसली हम उतनी ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन हिमांशी कम से कम अब ट्राई कर रही हैं। गेम पूरी तरह से कब्जे में है, तो शायद अपनी 3 पॉइंट शूटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। एक कामयाब भी हुआ था। Definitely not a bad idea because they've got tougher contests coming up against Haryana, against Tamil Nadu, where the opposition will be fairly taller. So you might not get as much space under the rim or in the paint as you are getting today. So it's not a bad idea for their sharp shooters to practice from in a game situation from outside the 3-point arc. And if they can get their act together, obviously the 3-point shooting from Himanshi Tiwari, who's been brave enough to get off 3 shots, 1 on target so far. वो भी लेफ्ट से लिया गया था। महाराष्ट्र व्हेन दे फेस तमिलनाडु एंड पंजाब, बड़ा मुश्किल उनके लिए गेम होगा, खासतौर पे आज जिस तरह की शूटिंग रही है। चौथे क्वार्टर में सिर्फ उनको 3 पॉइंट मिले हैं। 3 + 2 5 कीजिए। पेंट के बाहर से एक मिड रेंज फ्लोटर लगाया था महाराष्ट्र की पूर्वा ने। सिर्फ 7 पॉइंट उनके सेकंड हाफ में आए हैं। दिस इज हिमांशी। नए प्लेयर्स राजस्थान ट्राई कर रहा है। उमा के बाद वैभवी, अगेन हिमांशी, लुधियाना से लॉन्च किया, लेकिन लक्षद्वीप बॉल नहीं पहुंची। Launching from outside the 3-point arc, way behind that, stepping back from the defense. Will we see another one? इस बार दर्शी की कोशिश है, दीक्षा इनफैक्ट उन्होंने भी स्कोर शीट में अपना नाम लिखवा दिया, तो राजस्थान के कोच ने अपनी बेंच को पूरा हाथ आजमाने का मौका दिया। दीक्षा ने स्कोर किया, इनको बॉल दी थी हिमांशी ने, तो हिमांशी के नाम असिस्ट आएगा, दीक्षा के नाम स्कोर आएगा। The only player from the starting 5 on court is number 8 Himanshi Tiwari. Rest have all been given a break, already wearing their tracksuits because just the final minute to go and the lead is 48 points. Yes, 48. Massive, more than massive. इसी बीच फाउल हुआ है राजस्थान की डिफेंस से, तो 2 फ्री थ्रोज मिलने वाले हैं महाराष्ट्र को। Knocks down the first one. 50% इस मौके पर इनकी फ्री थ्रो शूटिंग रही है। दिस इज दीक्षा, जिन्होंने थोड़ी देर पहले स्कोर किया। नंबर 1 इज राशि, बॉल स्टील कर ली गई है। यहाँ अगर आप बॉल विरोधी से लेते हैं, वो भी काउंट होता है, आंकड़ों में जाता है, उसे स्टील कहा जाता है। अगर आप शॉट को बीच में ब्लॉक कर लें, उसे ब्लॉक कहते हैं, वो भी स्टैट्स में काउंट होता है। बास्केटबॉल में ये स्टैट्स बहुत महत्व रखते हैं। 5th foul of the quarter by Rajasthan. So despite being a non-shooting foul,
Maharashtra will go to the free throw line. Too little, too late. चलिए अपने सिर्फ पर्सनल स्कोर को थोड़ा बेहतर करने का मौका है. दिस इज सिया दियोधर जो टीम की पॉइंट गार्ड है और सबसे इंप्रेसिव प्लेयर विदाउट एनी डाउट. उसके बाद रिबाउंड पे बॉल को आप ले सकते हैं. लिया महाराष्ट्र ने स्कोर करने में जरूर नाकामयाब. आखिरी 1 मिनट चल रहा है. शूटिंग स्पेस आसानी से मिला नहीं. डॉज अच्छा दिया था. फाउल ड्रॉ करने में फिर से कामयाब. 2 फ्री थ्रोज और मिलेंगे. Lot of scramble there. This time earning that foul against Himanshi Tiwari, who has reason to feel aggrieved because she had stood her ground. She didn't move her feet. फ्री थ्रो शोमिरा ले रही हैं. रवि इन्होंने अपने स्पेक्स चेंज कर ली हैं. पहले क्वार्टर में काफी अच्छी और जैजी लुकिंग स्पेक्स थी. अब बड़ी स्टूडियस टाइप के चश्मे लगाए हुए हैं. Possibly the lens were getting fogged up. First one on target. Lead 46. Rejected by the rim. Rebound picked up by Rajasthan. Oh, ball will stay with Rajasthan. So we've got an opportunity of 2 plays. There you see the ball taken away and then very smartly taken it off. But the player, Maharashtra player, already stepped out of bounds. सिया टीम की पॉइंट गार्ड, सबसे इंप्रेसिव प्लेयर. शूटिंग स्पेस नहीं मिला लेकिन फाउल जरूर ड्रॉ करने उनको आते हैं. और चूंकि राजस्थान ऑलरेडी इस क्वार्टर में 4 से ज्यादा फाउल कर चुके हैं. टोटल प्लेयर मिलके भी एक क्वार्टर में अगर 4 फाउल कर दें तो विरोधी टीम को अगले हर एक फाउल पे 2 फ्री थ्रो मिलेंगे. चाहे वो शूटिंग फाउल हो चाहे वो नॉन शूटिंग फाउल हो. पहला फ्री थ्रो मिस किया है सिया दियोधर ने. Fourth and final quarter, slightly better than the third. Maharashtra had just 2 points. This time they've got 7 so far. और 7 में से भी 4 तो फ्री थ्रो से आए हैं रवि. 5 इनफैक्ट फ्री थ्रो से आए हैं. सिर्फ एक 2 पॉइंटर लगा था शुरुआत में. आखिरी क्वार्टर का पहला पॉइंट महाराष्ट्र ने स्कोर किया था. उसके बाद सिर्फ उनको फ्री थ्रोज मिले हैं. Shot clock no longer in operation because the game clock is lower than the shot clock. Easy layup for Rashi Khotani. And with 6 seconds to go, timeout called by Maharashtra. Possibly wants to tell the girls what time the team bus would leave. 0.63 सेकेंड रिमेनिंग. आपकी टीम लीड कर रही है मैसिव एक बड़े अंतर के साथ. लीड इज प्लस इनफैक्ट 48. कोच यहां पे अगर टाइम आउट लेते हैं तो एक ही कारण हो सकता है, ये कहने के लिए कि गर्ल्स वेल डन. राजस्थान ने टाइम आउट लिया और उनके कोच भी इनफैक्ट अपनी टीम के साथ नहीं है. शायद अपने टाइम आउट का कोटा वो इस्तेमाल करना चाहते हैं. But I think he's busy at talking to the technical table rather than with the players. No real problem there because 6.3 seconds remaining on the game clock. Ball will be with Maharashtra, who will inbound. Can they pull one more off? Under the rim? No way. एयर बॉल. आखिरी लम्हों में पता चलता है कि महाराष्ट्र की टीम राजस्थान के सामने कोई चुनौती नहीं पेश कर पाई. स्कोर भी अगर आप देख लें 36-82. फिर से टाइम आउट कॉल किया गया है राजस्थान के द्वारा. वेल दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आखिरी 2 मिनट में आप मैक्सिमम 2 ही टाइम आउट ले सकते हैं और राजस्थान के कोच का कहना है मैं कोई टाइम आउट छोड़ूंगा नहीं इस गेम में. Obviously he wants to convey the changed bus timings so the girls can enjoy the cultural events that's also going on in the neighboring tents. Maybe the coach also got the info that आज लंच में दाल बाटी चूरमा मिलने वाला है. 5.3 seconds to go. Rajasthan have the ball. Lead 46. Another 3-pointer in on target. Bombastic Ravi. दूसरा 3-pointer हिमांशी का और कॉर्नर
3 था जिसमें इस गेम को फिनिश किया। टोटल 3 3 पॉइंटर हमने देखे। तो इस प्लेयर ने नंबर 8 हिमांशी ने स्कोर किए हैं, दोनों लेफ्ट जोन से। एक कॉर्नर से लगा, एक तकरीबन 23 फीट दूर से लगा। और राजस्थान के कोच ये देखिए, आखिरी ये जो 3 पॉइंटर था, दिस वाज कॉर्नर 3, लेफ्ट विंग से लगाया गया। और इससे अच्छा समापन हो नहीं सकता। द परफेक्ट क्लाइमैक्स, ये स्टेटमेंट था राजस्थान का कि हमने ना केवल इस गेम को डोमिनेट किया है, बल्कि एक कॉर्नर 3 लगा के हम इस गेम को अलविदा कहेंगे। Tough shot there, converted by Rajasthan to finish things off. Winners by 49 points. That's